وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری کا مزید کہنا تھا کہ وینٹیلیٹر کی پہلی مینوفیکچرنگ NRDC نے کی اور NDMA کے حوالے کیا. ان کا مزید کہنا تھا کہ ملک میں 4 سرکاری اور نجی ادارے جو ہے وہ بنائیں گے. پاکستان $2.1 بلین کے میڈیکل آلات برآمد کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر بہت بڑی الیکٹرو میگنیٹک میڈیکل صنعت جا رہی ہے. پاکستان میں میڈیکل کی صنعت لگنے سے اگلے 3 سال میں $1 بلین کی برآمدات جو ہے وہ بچائیں گے. ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کو 5 سال میں بیرون دنیا سے کوئی میڈیکل آلات جو ہے وہ منگوانا نہیں پڑیں گے اور مجھے یقین ہے کہ جلد پاکستان کو باہر سے میڈیکل آلات جو ہے وہ منگوانا نہیں پڑیں گے. جی اہم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے شہراز ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. بہت شکریہ شہراز آپ کا. پاکستان میں وینٹیلیٹرز بنانے کے حوالے سے اہم دن. وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے اپنے ٹویٹر پیغام میں بتایا کہ میڈ ان پاکستان وینٹیلیٹرز کا پہلا بیچ NDMA کے حوالے کر دیا گیا ہے. وزیراعظم کا مقامی سطح پر تیار کیے گئے وینٹیلیٹرز پروڈکشن یونٹ کا دورہ. وزیراعظم کو پاکستانی انجینئرز کے تیار کردہ وینٹیلیٹر سے متعلق بریفنگ دی گئی. وزیراعظم نے وینٹیلیٹرز کے 15 یونٹس NDMA کے حوالے کیے. اس حوالے سے مزید تفصیلات اہم خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ وزیراعظم کا مقامی سطح پر تیار کیے گئے وینٹیلیٹرز پروڈکشن یونٹ کا دورہ. وزیراعظم کو پاکستانی انجینئرز کے تیار کردہ وینٹیلیٹر سے متعلق بریفنگ دی گئی. وزیراعظم نے وینٹیلیٹرز کے 15 یونٹس NDMA کے حوالے کیے ہیں. آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ وزیراعظم کا مقامی سطح پر تیار کیے گئے وینٹیلیٹرز پروڈکشن یونٹ کا دورہ کیا. وزیراعظم کو پاکستانی انجینئرز کے تیار کردہ وینٹیلیٹر سے متعلق بریفنگ بھی دی گئی. وزیراعظم نے وینٹیلیٹرز کے 15 یونٹس NDMA کے حوالے کر دیے ہیں. کرونا نے جہاں سب کچھ متاثر کر دیا ہے وہاں دہاڑی پیشہ مزدور کی بھی کمر توڑ دی ہے. اس حوالے سے جانتے اسلام آباد سے حنفا راجہ کی رپورٹ. جی بالکل، اس وقت جیسے کہ میں اسلام آباد میں موجود ہوں اور آپ میرے عقب میں دیکھ رہے ہوں گے کہ بلڈنگ بن رہی ہے اور کرونا کے باعث جیسے کہ سب کا کام ختم ہو چکا ہے، کوئی کام آج کل نہیں ہو رہا. اسی طرح جو ڈیلی مزدور ہے جو اپنا روزگار ان کا دہاڑی پیشہ سے چلتا ہے وہ بھی بالکل ہی ختم ہو چکا ہے. اس وقت میں تعمیراتی جو کام چل رہا ہے اس کے باہر کھڑی ہوئی اور ہمارے ساتھ مزدور موجود ہیں. ان سے میں جانوں گی کتنا مشکل ہو رہا ہے آج کل ان کا گزارا کرنا کیونکہ کام کوئی بھی نہیں ہے. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، وعلیکم السلام، شکر ہے اللہ کا. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کل جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کام کچھ بھی نہیں ہو رہا تو کتنا مشکل ہو رہا ہے آپ لوگوں کو کام ملنا، اور ہفتے میں کتنے دن کام مل جاتا ہے اور گھر چلانا کتنا اس میں مشکلات پیش آ رہی ہیں؟ بڑا مشکل ہے. یقین مان کے کرایہ بھی پورا گھر کا نہیں ہو جاتا، بجلی کا بل بھی پورا نہیں ہو جاتا، اور ہفتے کے چوک پر جاتے ہیں تقریباً 1-2 دیہڑی مل جاتی ہے اور بڑا مشکل ہے کام ادھر. تو آپ جیسے کہ آپ مزدور ہیں تو اور بھی کوئی کام نہیں ہو رہا تو اور جو اگر کام ڈھونڈیں گے تو اس میں بھی مشکلات پیش آئیں گی، تو کیا بولیں گے؟ نہیں ہے نا، لاک ڈاؤن ہے نا، جدھر بھی جائیں بازار بند ہے، مثال ہے ہر جگہ ہڑتال لگی ہوئی ہے. اس وجہ سے پولیس 5 بجے سے باہر چھوڑتا بھی نہیں ہے اور بڑے مشکل بنے ہوئے ہیں. یقین جی بالکل، جیسے کہ سب پریشان ہیں اسی طرح جو روزانہ سے یہاں سے کماتے ہیں جن کو تھوڑا بہت کام مل جاتا ہے وہ بھی بہت زیادہ پریشانی کی حالت میں، کیونکہ ظاہر ہے جب آپ کو کام نہیں ملے گا تو بل کدھر سے دیں گے، کرایہ کدھر سے دیں گے. ابھی بھی تھوڑا بہت جو کام شروع ہوا ہے یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، ان کا تھوڑا سا گزر بسر چل رہا ہے. جی بہت شکریہ حنفا. بھارت کی لائن آف کنٹرول کی ایک بار پھر خلاف ورزی، پاک فوج کا منہ توڑ جواب. بھارتی جارحیت جاری. ISPR کے مطابق 2 بچوں اور 2 معمر خواتین سمیت 5 افراد زخمی. بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول کی ایک بار پھر خلاف ورزی کی اور معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا. نکیال سیکٹر میں کی گئی خلاف ورزی کا پاک فوج نے منہ توڑ جواب دیا. بھارت کا مکرو چہرہ پھر دنیا کے سامنے آ گیا. LOC پر بلا اشتعال فائرنگ. سینئر بھارتی سفارتکار کی دفتر خارجہ طلبی. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارتی فورسز LOC اور ورکنگ باؤنڈری پر شہری آبادی کو بھاری ہتھیاروں سے نشانہ بنا رہی ہے.
दूसरी जानिब आपको बताएंगे कि सिंध रोशन प्रोग्राम करप्शन केस में वजीर आला मुराद अली शाह ने आज नैब में पेश होने से माजरत कर ली है। नैब ने मुराद अली शाह को 8 जुलाई को दोबारा तलब कर लिया है। सिंध रोशन प्रोग्राम करप्शन केस में नैब ने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को आज तलब कर रखा था, ताहम वजीर आला सिंध ने आज पेशी से माजरत कर ली। नैब ने वजीर आला सिंध को 8 जुलाई को दोबारा तलब कर लिया। मुराद अली शाह को 8 जुलाई को नैब ओल्ड हेडक्वार्टर्स पेश होने की हिदायत की गई, जबकि नैब ने मुराद अली शाह को 28 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा भी भिजवा रखा है। मुराद अली शाह को अगली पेशी पर इन 28 सवालात के जवाब देने होंगे। फारूक एचनायक की मीडिया से गुफ्तगू। आसिफ अली जरदारी 2005 से पार्कलैंड कंपनी के डायरेक्टर नहीं हैं। उन्होंने बताया कि जिस कंपनी ने कर्जा लिया इससे आसिफ जरदारी का कोई ताल्लुक नहीं। मजीद क्या कहते हैं जानते हैं हमारे नुमाइंदा अब्दुल रहमान की इस रिपोर्ट में। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पार्कलैंड रेफरेंस पर समाअत हुई। फारूक एचनायक ने अदालत को बताया कि ये जानबूझकर कर्ज डिफॉल्ट का मुकदमा है। स्टेट बैंक ने एक्शन लेना था, जिस पर नैब ने कहा कि आसिफ अली जरदारी के खिलाफ इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल, धोखादही और फ्रॉड का मुकदमा है। अदालत ने आसिफ अली जरदारी की पार्कलैंड रेफरेंस खारिज करने की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी किया, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हमने नोटिस वसूल कर लिया, आज ही जवाब देंगे। अदालत से इस्तदा है कि आसिफ अली जरदारी की दरख्वास्त पर फैसला करे। आज ही आसिफ अली जरदारी समेत तमाम मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाए। वकील फारूक एचनायक ने कहा, मुझे अपनी दरख्वास्त पर दलाइल के लिए वक्त दरकार है, जिस पर केस की मजीद कार्रवाई 14 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। एहतसाब अदालत इस्लाम मकबूजा कश्मीर भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। 2 कश्मीरी शहीद। जिला कलगाम में नाम निहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान काबिज भारतीय फौज ने फायरिंग करके 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। मकबूजा कश्मीर भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। 2 कश्मीरी शहीद। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने नाम निहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग करके मजीद 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मकबूजा वादी के जिला कलगाम में नाम निहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान काबिज भारतीय फौज ने फायरिंग करके 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। भारतीय फौज ने बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करते हुए नौजवानों की लाशों को लवाहिकीन को देने से इनकार कर दिया, जिस पर अहले खाना और इलाका मकीनों ने शदीद एहतजाज किया। कबल अजीब भारतीय फौज ने एक ज़ईफ शख्स को कमसन नवासे के सामने गोली मारकर शहीद कर दिया था। वाज़ेह रहे कि रवा माह के आगाज में ही काबिज भारतीय फौज ने दहशतगर्दी में शहीद होने वाले नौजवानों की तादाद 6 हो गई है, जबकि गुज़िश्ता माह शुहदा की तादाद 54 थी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना वायरस के ताज़ा आदादोशुमार जारी कर दिए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 3,344 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मजीद 50 मरीज दम तोड़ गए हैं। सिंध में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है, जहां 94,000 से जायद केसेस सामने आ चुके हैं। पंजाब में 82,000 के करीब, KPK में 28,000 से जायद केसेस रिकॉर्ड हुए। इस्लामाबाद में 13,494, बलोचिस्तान में 10,814, गिलगित-बल्तिस्तान में 1,561 और आज़ाद कश्मीर में 1,342 केसेस रिकॉर्ड हुए। अमवात की मजमूई तादाद 4,762 हो गई है। सिक्योरिटी गार्ड्स की अदम दस्तियाबी और डाउन साइजिंग अड्डा पीरवदाई का मुसाफिर खाना मनशियात फरोशी का गढ़ बन गया। नशई अफराद ने शीशे तोड़ दिए, इंतजामिया टस से मस ना हुई। मजीद जानते अपने नुमाइंदा उस्मान बरी की इस रिपोर्ट में। जनरल बस स्टैंड अड्डा पीरवदाई मुसाफिर खाना एक मरतबा फिर मंशियात फरोशी और चोरी चिकारी का गढ़ बन गया। पोल्ट्रियों चर्सियों ने शीशे तोड़ दिए और लोहे सिल्वर के दरवाजों को भी तोड़ फोड़ कर बेचना शुरू कर दिया। मुसाफिर खाने में सिक्योरिटी गार्ड्स की अदम दस्तियाबी की वजह से मुसाफिर खाने पर भी नशेइयों ने कब्जा शुरू कर दिया। मुल्क गिर सतह पर सफर करने वाले मुसाफिर इस मुसाफिर खाने में बैठने से कतराते हैं, जबकि खवातीन और बच्चों ने मंशियात फरोशों, नशेइयों और चोरों के डर से मुसाफिर खाने में बैठना छोड़ दिया। सिक्योरिटी गार्ड्स की कमी और मुख्तलिफ जगहों पर सिक्योरिटी गार्ड्स की तैनाती की वजह से मुसाफिर खाना पोल्ट्री और मंशियात फरोशों ने संभाल लिया। पीरवदाई पुलिस भी चुप और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन इंतजामिया ने भी कबूतर की तरह आंखें बंद कर ली। कैमरामैन शहराज के साथ चौधरी अदनान बरी, JNN रावलपिंडी। हैदराबाद से ब्रेकिंग न्यूज शामिल करेंगे और आपको बताएंगे कि MPA नुसरत सहर अब्बासी ने जहनी अमराज के अस्पताल का अचानक दौरा किया है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि जहनी अमराज अस्पताल के MS ड्यूटी से गायब थे। MPA नुसरत सहर अब्बासी ने जहनी अमराज के अस्पताल का अचानक दौरा किया, जहां MS ड्यूटी से गायब थे। मरीजों ने नुसरत सहर अब्बासी के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए हैं।
नुसरत सहर अब्बासी ने इस मौके पर कहा है कि सिंध हुकूमत ने लाडले अफसरान तैनात कर रखे हैं। गुद्दू अस्पताल सिंध का सबसे बड़ा ज़हनी अमराज का अस्पताल है। मुझे शिकायत मिली कि यहाँ मरीजों के साथ जुल्म हो रहा है, ऐसा कहना था नुसरत सहर अब्बासी का। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि मुझे असेंबली में ज़हनी टॉर्चर दिया जाता है, हो सकता है कभी इलाज के लिए आना पड़ जाए। नुसरत सहर अब्बासी ने गुद्दू अस्पताल आमद की इत्तला मिलते ही छुट्टी पर मौजूद एमएस ड्यूटी पर पहुंच गए। एमएस एजाज कादिर पटोली ने नुसरत सहर अब्बासी से कहा कि आप ऐसे कैसे अस्पताल आ गए, ये गलत तरीका है। जिस पर नुसरत सहर अब्बासी ने सवाल किया, क्या आप मुझे अस्पताल के दौरे से रोक सकते हैं? एमएस कादिर पटोली ने कहा कि आप अवामी नुमाइंदा हैं, मैं भला कैसे रोक सकता हूँ। ज़हनी अमराज अस्पताल की हालत बहुत खराब है, ऐसा कहना है नुसरत सहर अब्बासी का। अहम खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से और आपको बताते हैं कि एमपीए नुसरत सहर अब्बासी ने ज़हनी अमराज के अस्पताल का आज अचानक दौरा किया है, जहां पे एमएस ड्यूटी से गायब थे। मरीजों ने नुसरत सहर अब्बासी के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि मोदी की मुन्ना भाई एमबीबीएस बनने की कोशिश नाकाम। दूर दराज हिमालय रीजन में न सिर्फ जाली अस्पताल बनवा दिया बल्कि इसमें धड़ल्ले से फोटोशूट भी करवाया। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुन्ना भाई एमबीबीएस से बेहद मुतासिर हैं, जिन्होंने दूर दराज हिमालय रीजन में न सिर्फ जाली अस्पताल बनवा दिया बल्कि इसमें धड़ल्ले से फोटोशूट भी करवाया। यहाँ ये समझना मुश्किल है कि मोदी जी ने किसके खौफ से ऐसा किया होगा। मोदी की मुन्ना भाई एमबीबीएस बनने की कोशिश नाकाम। फिल के अस्पताल में लाजिम अशिया का ख्याल रखा गया था, लेकिन बीजेपी फॉर इंडिया और दीगर सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर की गई तस्वीर में देखा जा सकता है कि मोदी जिस अस्पताल में खड़े हैं वहाँ ना तो कोई डॉक्टर है, ना नर्स, ना ही वेंटिलेटर और ना ही कोई दीगर तिब्बी आलात। मजीद सितम यह कि वहाँ मौजूद बड़ा सा प्रोजेक्टर जाहिर कर रहा है कि ये कोई कॉन्फ्रेंस रूम है। बैनुल-अक़वामी खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे कि तुर्की का पहले बहरी मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। तुर्की ने 200 किलोमीटर के फासले पर अपने हदफ को कामयाबी के साथ निशाना बनाने वाले पहले बहरी मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक सरबराह डिफेंस इंडस्ट्रीज प्रेसिडेंसी इस्माइल डेमर ने अपने एक बयान में कहा कि तुर्की के मकामी तौर पर तैयार करदा समुद्री मिसाइल का तजुर्बा कामयाब रहा। पाकपतन में एंटी करप्शन के नाजायज काबजीन ने कब्रिस्तान की 8 किनाल अराजी वागुजार करवा ली। काबजीन ने दरबार से मुनक़िद कब्रिस्तान की सरकारी अराजी पर पुख्ता तामीरात करके कब्जा जमा रखा था। पाकपतन एंटी करप्शन ने गांव 34 एसपी से महकमा औकाफ की निशानदही पर कब्रिस्तान की 8 किनाल अराजी वागुजार करवा ली। सर्कुलर ऑफिसर एंटी करप्शन राना नदीम इकबाल ने बताया कि वागुजार करवाई गई अराजी की मालियत 22 लाख रुपए है। नाजायज काबजीन ने पुख्ता तामीरात करके दरबार से मुल्हिका कब्रिस्तान की अराजी को कब्जे में ले रखा था। उन्होंने बताया कि एंटी करप्शन ने पुख्ता तामीरात को गिराकर अराजी का कब्जा महकमा औकाफ के हवाले कर दिया है। रुख करेंगे लिया का, जहां चौक आजम एसडीओ वाबड़ा के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज। वार्ड नंबर 3 बस्ती भट्टी का ट्रांसफार्मर 6 रोज से जला हुआ है। अवाम का कहना है कि एसडीओ वाबड़ा 12,000 रुपए रिश्वत मांगता है कि ट्रांसफार्मर बदलने की आड़ में अवाम ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि एसडीओ वाबड़ा के खिलाफ कार्रवाई की जाए और तबादला करके नेक नियत ईमानदार डीएसओ तैनात किया जाए और फौरी हमारा ट्रांसफार्मर नस्ब किया जाए, वरना हम इससे बड़ा एहतजाज करेंगे। पाकपतन नहर में 30 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। पानी का बहाव तेज होने से पानी पास्को के खरीदारी मराकज में दाखिल हो गया, जिससे जखीरा की गई गंदम की हजारों बोरियां मुतासिर होने लगी हैं। पाकपतन के नवाही गांव 55 एसपी के करीब नहर में पड़ने वाला 30 फीट चौड़ा शगाफ पानी का बहाव तेज होने की वजह से ना भर सका, जिसके बायस नहर का पानी पास्को के गंदम खरीदारी मरकज में दाखिल हो गया, जिससे जखीरा की गई गंदम की हजारों बोरियां शदीद मुतासिर होने लगी। जबकि नहर का पानी करीबी फसलों में दाखिल होने से सैकड़ों एकड़ रकबा भी जेरे आब आ गया। पानी से कपास, मकई, चावल और चाराजात की फसलें शदीद मुतासिर हो रही हैं। मकामी अफराद इंतजामिया की शगाफ भरने के लिए मशीनरी के जरिए कोशिशें जारी हैं। भक्कर में हालात की सितम ज़रीफी, एक और घर का चिराग गुल कर गई। भक्कर के नवाही इलाके चक नंबर 36 में इमाम मस्जिद ने मुबैना तौर पर गुर्बत से तंग आकर खुदकुशी कर ली। बस्ती काकुल के रिहायशी मोहम्मद वकास नामी इमाम मस्जिद ने मस्जिद से मुतासिर हुजरे में गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। अहले इलाका का कहना था कि वकास कुछ अरसे से परेशान था, शायद इसी वजह से इसने जिंदगी के थपेड़ों से बचने के लिए अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। पुलिस थाना सदर भक्कर ने लाश को कब्जे में लेकर मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है।
कनकोड में तंगवानी गौसपुर लिंक रोड पर रिक्शे के जरिए बिस्किट सेल करने वालों से डाकुओं की सरेआम लूटमार, डकैती के खिलाफ मुतासरीन का लिंक रोड पर एहतजाज, पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी। डाकुओं ने गौसपुर से बिस्किट सेल करके वापस आने वाले रियाज अहमद और नसरुल्लाह से असले के जोर पर नकदी रकम, मोबाइल फोन और दीगर सामान लूट लिया। डाकू लूटमार के बाद फायरिंग करते हुए कच्चे की तरफ फरार हो गए, जबकि थाना जमाल और तंगोई पुलिस की हदबंदी पर तकरार के बायस डाकुओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। मुतासरीन का तंगोई गौसपुर रोड पर एहतजाज, पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मुतासरीन का कहना था कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, वज़ीर आला सिंध और IG सिंध नोटिस लेकर लूटी हुई नकद रकम और सामान वापस कराएं। सवात में रेस्क्यू 1122 गाड़ी हादसे का शिकार, गाड़ी में मौजूद मरीजा दम तोड़ गई। सवात तहसील मिट्टा के इलाके शोर अली ग्राम में मियां नूर अली की वालदा साहिबा बीमार थी तो उन्होंने रेस्क्यू 1122 को फोन किया। रेस्क्यू 1122 के ड्राइवर ने गाड़ी बेकाबू हो गई और नीचे खेतों में जा गिरी, जिसमें मौजूद खातून दम तोड़ गईं। वज़ीर आज़म इमरान खान के कोऑर्डिनेटर अहमद खान नियाजी ने कोहाट का दौरा किया और कोरोना वायरस के हवाले से उठाए गए मुख्तलिफ इक़दामात का जायजा लिया। मजीद अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदा उस्मान पराचा की रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान के कोऑर्डिनेटर अहमद खान नियाजी ने कोहाट का दौरा किया। इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोहाट की जिली क़यादत में मलक इकबाल समेत दीगर अहदेदारों ने उनका इस्तकबाल किया। अहमद खान नियाजी ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कोहाट का दौरा किया और कोरोना वार्ड में मरीजों की तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। इस मौके पर MSDHQ अस्पताल ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए उठाए गए इक़दामात के हवाले से उन्हें ब्रीफिंग दी। अहमद खान नियाजी ने फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले डॉक्टर, नर्सेस और पैरामेडिकल स्टाफ को खराज तहसीन पेश किया और इसी तरह काम जारी रखने की हिदायत की। उस्मान पराचा, JNN न्यूज़, कोहाट। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे एक ब्रेक के बाद।